इंसान की भावनाओं का प्रबल प्रवाह जब रुक के नहीं रुकता, उस समय वह कला के रूप में उभरता है। कला के लोगों से जुड़ते हुए नई दिल्ली के खान मार्केट में अतुल मारवा द्वारा एम.ई. आर्ट गैलरी में एक शानदार आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लगभग 30 वर्ष एम.एस.आई. यानी मेक आर्ट गैलरी ने देश को कई पेंटर दिए, जिनके अंदर प्रतिभा तो थी लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिल रहा था। कोरोना के बाद एक बड़ी पेंटिंग प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से 35 कलाकारों को चुना गया और उनकी पेंटिंग की प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें पेंट, ऑयल, पेंसिल स्केच शामिल रहा। गैलरी के चेयरमैन अतुल मारवा ने कहा कि नए कलाकार के अंदर टैलेंट भरा हुआ है, जो रंगों से खेलना जानते हैं। हर पेंटिंग में कलर एवं ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया गया। इस अवसर पर भारत में रांडवा गणराज्य के उच्च योग सेकंड काउंसलर रोकजे पोस्टर ने कहा कि लाइट और रंगों का बेहतरीन सामंजस्य दिखाने को मिला। ललित भसीन ने कहा कि मैं हर उस इंसान का इज्जत करता हूं जो अपने काम को मेहनत एवं दिल से करता है। यहां आकर नए लोगों का काम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। निवेदन करूंगा रिस्पेक्टेड ललित भसीन जी से कि 2 शब्द। There is art in everything. People make a distinction between art and science. Even when we are students, we are asked, will you go for art or will you go for science? But I believe even in science there has to be art. Everything is science. Everything is art. Therefore, this promotion of art is actually promoting life itself. Yes. There is art in each and every aspects of our life, our daily life. And it's a brilliant initiative. I compliment Mr. Sandeep Marwa for this, having this gallery of, I am not someone expert in evaluating, you see what I have seen now, but I am really impressed that this is a good initiative. Please keep it up. And even if Gyani ji is no longer with us, but there will be other people. His blessings are with us. You have such good artists here, brilliant artists, so carry on the message. Thank you. Now, the most important thing is that under G20, this is now the term of India to be the president of G20, and we are very happy that Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi will be taking care of as a chair of G20 for this whole year of 2023. One of the major points in G20 is also to unite all these 20 countries through art and culture. And I'm very happy that we have taken this initiative under International Chamber of Media and Entertainment Industry and together with Indo-American Chamber of Commerce. And we will be projecting art of all these 20 countries throughout the year through different genre of events, whether it's workshops, seminars, symposium, interaction programs, festivals, and whatnot. I'm very happy today. We have another very important guest from the Embassy of Rwanda, Mr. Idris, the Second Secretary. May I request you, sir, to speak a few words. Thank you so much, Dr. Sandy. Thank you for inviting Rwanda. We are grateful to the relationship between your university and the Rwanda. So we've been working together in different things. And thank you so much for inviting us to come and see this beautiful and the amazing gallery. Thank you so much. Our government of Rwanda believes that the cultural heritage and its promotion is one of the contributors to the economic growth. And I keep encouraging the artists to maintain this momentum, to keep working very hard and preserve all these beautiful things. Thank you so much again, Dr. Sandy. Thank you, sir. Making this day a very special day for us. Earth, that's where we live. If you see the spelling, it's nothing but full of art. E-A-R-T-H. So it's art first and earth later.
And I feel that all artists are storytellers. So they tell their story in their format, in their emotion, and they represent their thought process on canvas or paper the way they want to tell. And every painting, even a single line drawn, is a very thoughtful thing, and everybody should appreciate. And you know, appreciating art is like developing a palate for a food. So पहले लोग इंडियन खाते थे, फिर चाइनीज ऐड हुआ, फिर इटालियन हुआ, मैक्सिकन. इसी तरह आपको you have to go to more and more galleries, see more art, and then you start developing a taste for appreciating art. So one should visit many galleries and see how people are working and appreciate their work. अर्पिता जी प्लीज. ये वो लोग हैं जिन्होंने आर्ट को प्रमोट किया है. सईदा अंसारी. आज हमने जो एग्जीबिशन लगाई है इसमें 42 आर्टिस्ट हैं जो ऑल ओवर इंडिया से हैं, एंड वी हैव सिलेक्टेड देम जो भी अपने स्टेट और नेशनल लेवल पे वेव्स बना रहे हैं या अपना काम अच्छा कर रहे हैं, उनको इनवाइट करके हमने ये शो लगाया है सो दैट के लोग दिल्ली के इसको देख सकें और इन्जॉय कर सकें. आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहिए? आर्टिस्ट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अच्छा काम करते रहिए, सीरियस काम करिए, और वर्ल्ड इज वेरी बिग टू एंजॉय देयर वर्क. सर कोई तरीके से आर्टिस्ट जो आपने चुने हैं जिनकी पेंटिंग चलाएं, क्या प्रोसीजर था, किस तरीके से उनको यहाँ पे आपने शामिल किया? एक्चुअली हमारा 5 लोगों का पैनल है जिसमें आर्ट क्रिटिक हैं, आर्टिस्ट हैं, क्यूरेटर्स हैं. उन सब जब यूनानिमसली सब हाँ कर देते हैं देन वी हैंडल देयर वर्क. और इस शो में तो वही हैं जैसे मैंने बताया कि जो जो लोग अपने लेवल पे न्यूज़ बना रहे हैं अपने काम के साथ, उनको इनवाइट किया गया. सर जो आर्टिस्ट अपना पेंटिंग यहाँ लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आपसे मिल सकते हैं? उनको अपना काम सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन, और फिर वही हमारे पैनल के थ्रू अप्रूवल मिलता है, तो देन वी स्टार्ट हैंडलिंग देयर वर्क्स. बट काम अच्छा होना चाहिए और सीरियस होना चाहिए, और मतलब जेन्युइन एफर्ट उनको होना चाहिए, बिकॉज वी सेल आर्ट एज इन्वेस्टमेंट. तो फिर उसके लिए लोग बहुत कॉन्शियस हैं कि अच्छा आर्टिस्ट हो, अच्छा काम हो. सर दिल्ली की ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे इसको आयोजित करने का क्या मकसद है, क्या मैसेज यहाँ से डिलीवर करना चाह रहे हैं? लकीली हमारे पास यही जगह है, तो प्राइम लोकेशन तो पता नहीं, बट काफ़ी लोग यहाँ इंटरनेशनल NRIs और अपने दिल्ली एंड सराउंडिंग लोग आते हैं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है यहाँ पर आके शॉपिंग कर रहे हैं और बीच में आर्ट को भी इंजॉय कर रहे हैं. तो दे कम अप एंड एंजॉय पेंटिंग फॉर 15 मिनट्स एंड लर्न एंड गो. थैंक यू. आर्ट एंड गैलरी एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग यहाँ पर MEC आर्ट गैलरी में सभी लोग उपस्थित हैं और एक नई एग्जीबिशन ग्रुप शो का उद्घाटन हुआ है. मैं अतुल मारवा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस शो को यहाँ पर खान मार्केट में आज इस भव्य तरीके से लॉन्च किया है. पैंडेमिक के बाद ये पहला बड़ा शो है जो इस वक्त यहाँ खान मार्केट में लगा है. ये गैलरी तकरीबन 31 साल पुरानी है, जिसका विमोचन फरवरी 1991 में हमारे आदरणीय भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने किया था, और उनके कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन के बाद तब से ये आर्ट गैलरी बड़ी उत्साह और उल्लास के साथ यहाँ काम कर रही है. ख़ास तौर पे इस आर्ट गैलरी का एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है पूरे देश के लिए, वो ये कि बहुत सारे नए कलाकारों को इसने आर्ट गैलरी ने जन्म दिया है.
और ऐसे लोग जिन्हें ज़िंदगी में आगे आने का मौका नहीं मिलता था, जिन्हें कोई आर्ट सेंटर या कोई आर्ट गैलरी भाव नहीं देती थी, इस आर्ट गैलरी ने उन लोगों को भी यहाँ बुलाकर एक उनकी सुंदर रूपरेखा तैयार की है। आज वही सब आर्टिस्ट जो अपना काम लेकर थैलों में घुमा करते थे, आज वो देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं इन 31 सालों में, और हज़ारों और लाखों रुपए की उनकी पेंटिंगें बिकती भी हैं। सर G20 का आपने जिक्र किया, कैसे समझते हैं कि G20 से आर्ट को कितना फ़ायदा मिलेगा? 2023 का ये आज चौथा दिन है और पहली तारीख से भारत को G20 का अध्यक्ष चुना गया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस पूरे G20 की 20 मेंबर्स की इस टीम को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना भी है कि इन तमाम यूरोपियन यूनियन और 19 देशों को मिलाकर इनके तमाम आर्टों को, आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया जाए। और ये मेरा धर्म है, इसे मैं अपना धर्म समझता हूँ कि आर्ट और कल्चर में हम लोग पहले ही 67 मुल्कों के साथ जुड़ चुके हैं और इन तमाम 20 मुल्कों, 20 मेंबरों के बीच में मैं देख रहा था कि तकरीबन 15 लोगों के साथ तो हम लोग ऑलरेडी बेहतरीन काम कर रहे हैं मिलके। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बैनर तले सभी किस्म के आर्टों को हिंदुस्तान में प्रमोट करेंगे और G20 को। I'm Dr. Anupma Bhardwaj. I'm an anthropologist and also a painter, but not a big time painter. मैम यहाँ आए, कैसी कलेक्शन देखी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, कलेक्शन इज़ रियली ब्यूटीफुल और ये एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है बडिंग आर्टिस्ट के लिए और जो स्टैब्लिश भी हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के वर्क है हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, तो आई विल से दिस इज़ रियली वेरी गुड। आप कई जगह जाते हो कि यहाँ क्या डिफरेंस? यहाँ पर मुझे यही डिफरेंट लग रहा है। एक तो कलेक्शन इज़ रियली गुड, उन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ें ले रखी हैं, कोई भी एक थीम को नहीं लिया है। सो ऑन वन प्लेस यू कैन सी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। और कई जगह हम जाते हैं तो एक ही आर्टिस्ट का काम होता है, हियर वी आर एबल टू सी द वर्क ऑफ सेवरल आर्टिस्ट। एंड लगा कैसा, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जीबिशन के बारे में? उसी आर्ट और लाइफ में बहुत ज़बरदस्त इंटरकनेक्शन है। आर्ट के बगैर जो है लाइफ चल नहीं सकती, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप ये आर्टिस्ट हों जो ये पेंटिंग बनाते हैं, चाहे आप एक डॉक्टर हों, चाहे जैसे मैं एक लॉयर हूँ। एक आर्ट की हर चीज़ में ज़रूरत होती है। आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम अपने विचारों को, अपने विजन को, अपने व्यूज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये जो फॉर्म एक है, ये जैसे किसी ने कहा कि आप जो बोल नहीं सकते वो ये पेंटिंग, वो ये आर्ट पीसेस ये बोलते हैं, ये आपके एक्सप्रेशन को करते हैं। सो ऐसी इवेंट्स जो हैं ये होनी चाहिए, हर देश के हर कोने में होनी चाहिए, दुनिया भर में होनी चाहिए, ताकि आर्ट का इंटीग्रेशन हो। जैसे G20 हो रहा है, उसी तरीके से G20 में आर्ट का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हाईलाइट करना चाहिए। आर्ट, कल्चर, आपस की जो एफिनिटीज़ हैं हमारी, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और ऐसे बार बार होते रहने चाहिए। वसीम सर, यंग आर्टिस्ट जो होते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर फील्ड में स्ट्रगल करना पड़ता है, एकदम से रिकग्निशन नहीं आती किसी को। यंग आर्टिस्ट के लिए है कि कमिटमेंट होनी चाहिए कि हमने कुछ अचीव करना है और सक्सेस उनको मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी, पर ये मैसेज है कि आप करते रहो, निराश मत होइए, पर आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको पता, दुनिया को पता लगेगा कि आप भी उभरते हुए आर्टिस्ट। क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने कलेक्शन देखा है और बहुत ज़्यादा बढ़िया कलेक्शन है, ग्रेट आर्टिस्ट का काम है और जितना फाइन सारा किया हुआ है उसके हिसाब से आई एम श्योर आगे बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। सारे आर्ट लवर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी करने वाले हैं एंड द सीजन इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर देम। रोजिका जी, आप किस तरीके से देखते हैं, कैसी कलेक्शन देखी आपने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी कलेक्शन है। सिर्फ वाइब्रेंट कलेक्शंस के अलावा
ब्लैक एंड वाइट में बहुत अच्छे, मोनोक्रोम में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सीनरी से लेके पोर्ट्रेट्स तक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट ने बहुत फाइन काम किया हुआ है, और जिसे कहते हैं ना कि अपनी जान डाल दी है। आर्ट कोई आसान नहीं है बनाना, जब तक अच्छे थॉट्स नहीं आए, पेशेंस का भी काम है, और कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन उसमें ज़रूर होता है कि आपको ईश्वर क्या बनाने की सलाह दे रहा है और क्या आपसे बनवा रहा है। तो आर्ट का ये नहीं है कि कोई भी ऐसे उठा के बनाना शुरू कर देगा, उसके लिए गॉड गिफ्ट भी होनी चाहिए। एक अगर सीधी लाइन भी अगर आप खींच पा रहे हैं तो वो भी आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। और यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ कि बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। मोनोक्रोम पे जितना अच्छा काम किया हुआ है, कैनवस पे जितना अच्छा काम किया हुआ है, हिस्टोरिकल पे कितना अच्छा काम किया है, आई एम श्योर बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग पीपल जो भी आर्ट लवर्स हैं और जिनको टैलेंट है, जिनको पसंद है आर्ट में किसी भी तरीके से कुछ काम करना, उसको उसे परस्यू करना चाहिए, आगे टैलेंट को सामने आना चाहिए और उसे करियर बनाना चाहिए, जिससे कि हमें और अच्छा काम देखने को मिले।